So hello everyone. Today we are going to start our chapter 1 in reproduction in organism. This is the first chapter of class 12 biology. So moving on to the next slide to synopsis. If we see the synopsis, first we have to cover the lifespan, then death, then reproduction, then needs of reproduction, then types of it, then asexual reproduction, then further we read about the modes of asexual reproduction. Okay, so next slide. Yeah, lifespan. So what is lifespan? Lifespan is a period between the birth to the natural death of a living organism. यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन, नेचुरल डेथ तक का. ठीक है, और ये वेराई कर सकता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. जैसे एलिफेंट में ये होता है 60 to 70 ईयर और ह्यूमन बीइंग में होता है 80 to 100 ईयर्स. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. लाइफ स्पैन मे बी एज शॉर्ट एज a few days और as long as 1000 years. तो ये बहुत कम भी हो सकता है लाइफ स्पैन और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है. ठीक है, लाइफ स्पैन कभी भी उनके ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता या वेट पे डिपेंड नहीं करता. फॉर एग्जांपल जैसे कि क्रोज और पैरट दोनों का शेप साइज लगभग एक ही है क्योंकि दोनों बर्ड है, बट उनका जो लाइफ स्पैन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, मैंगो ट्री और पीपल ट्री दोनों ट्री ही है लेकिन उनके बीच में उनके लाइफ स्पैन में भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड. डेथ इज ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज अ सर्टेनिटी. ठीक है, डेथ जो है वो सर्टेन है, मतलब बर्थ जो जिसकी हुई है उसकी डेथ होना सर्टेन है. बट नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल. कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डेथ क्यों नहीं आता? तो उसका रीजन ये है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म खुद डिवाइड होकर दो अलग इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, यानी पेरेंट सेल ही डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है. So next slide. What is reproduction? Reproduction is defined as a biological process in which organism give rise to their offspring. That means young ones to itself. Okay. So reproduction ऐसा process जिसमें individual जो होते हैं वो अपने जैसे दिखने वाले new organism को birth देते हैं and offspring बाद में खुद grow करते हैं, mature होते हैं और वो फिर से capable हो जाते हैं offspring birth देने के लिए. Okay. So next slide. Need of reproduction. Why there is a need of reproduction? Our main question is, as you all know that all living being has a certain lifespan. After the death of a living organism, there must be the continuity of their species. So there is a need of reproduction, and reproduction is the only process that can enable the continuity of the species of generation after the generation of living organism. Okay, next slide. Types of reproduction. So majorly there are two types. First is asexual and second one is sexual reproduction. We can take both. Okay, so next, asexual reproduction. There is without involvement of sex. It means there is a no male, there is a no female. Okay, with no gametogenesis. It means no gamete formation are there or oospum. No mating or copulation. Only mitosis division in which multiplication of chromosome is there. No any gamete fusion. It means fertilization is there. Offspring genetically identical to their parents, so as they can referred as a clone. The mode of common is single cell organism but present in the wide range of organism. Okay, just like example, plant and animal have the relatively simple organization, have this type of asexual reproduction. Okay, next, types of asexual reproduction. There are several types. We are only discussing here 5. First is fission, second is budding, fragmentation, spore formation and vegetative propagation. So next, yeah, binary fission is the first type of asexual reproduction in which क्या होता है, पेरेंट्स जो सेल है वो दो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस के बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और दो डॉटर सेल में वो कन्वर्ट हो जाती है. तो ये टाइप का सेल डिवीजन जो है अमीबा पैरामीशियम इन ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है. नेक्स्ट, दैट इज बर्डिंग. उसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म में छोटी सी बर्ड जनरेट होती है पार्ट किसी भी पार्ट से और वो बर्ड ग्रो करने के बाद मैच्योर होने के बाद वो जो मेन बॉडी से सेपरेट हो जाती है और सेपरेट होने के बाद वो एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेते हैं. इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं बर्डिंग के थ्रू. ओके, नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन. इसमें क्या होता है कि एनिमल के जो बॉडी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी, जो अलग अलग सेल, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सेल एक साथ जुड़ी रहती है बट दे आर नॉट कलेक्टिवली ब्रेकिंग, बट
एक्चुअली क्या होता है उसमें से ब्रेक हो जाता है सेल बीच में से और अलग अलग इंडिविजुअल सेल जो है वो डिसोशिएट हो जाती है और नया इंडिविजुअल बना लेती है। तो ये टाइप जो था वो था फ्रेगमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन। ये ज़्यादातर कॉमन है फंगस में, जिसमें छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं और जब वो फंगस का जो स्पोरेंजियम है वो ब्रस्ट होता है तो उसमें से स्पोर्स निकलते हैं और जिस भी जाके सरफेस पे बैठते हैं वहाँ पे वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है स्पोर फॉर्मेशन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है, जो प्लांट पार्ट का जो नए प्लांट पार्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो किसी अदर देन सीड से होता है, मतलब सीड पार्ट से नहीं होता, किसी और वेजिटेटिव पार्ट से होता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ऐसे पार्ट जिससे नया प्लांट बनता है वो होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेट्स। ओके, सो नेक्स्ट, अब जो है प्रोपगेशन जो है वो आर्टिफिशियली भी किया जा सकता है ह्यूमन के इंटरवेंशन से। तो उसमें फर्स्ट है कटिंग टाइप। उसमें क्या होता है, हम किसी एक ट्विग को कट करते हैं और उस ट्विग को किसी पॉट में प्लेस करते हैं। पॉट में प्लेस करने के बाद वो ट्विग जो है वापस एक नया प्लांट बना लेती है। तो ये मेथड जो होता है ज़्यादातर रोज में देखा जाता है, तो ये मेथड यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं, दो अलग प्लांट के कैरेक्टर्स को मिला करके एक नया डिजायरेबल कैरेक्टर अगर हमको बनाना है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक प्लांट जिसको हम ऊपर से लगाते हैं उसको बोलते हैं सीजन, नीचे जो बेस प्लांट होता है उसको बोलते हैं स्टॉक, दोनों को हम ग्राफ्ट यूनियन कर देते हैं। उसके बाद सेलो टेप से रैप कर देते हैं वैक्स लगा के, ताकि कोई एंटी फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो और एक नया जो प्लांट बनता है वो डिजायर्ड कैरेक्टर वाला होता है। सो अगला हम देख लेते हैं लेयरिंग में क्या होता है, जो मेन प्लांट होता है उसके एक ट्विग को नीचे ग्राउंड तक के डाउन करके वहां पे सॉइल डाल देते हैं और सॉइल डालने के बाद वहां से रूट्स आ जाती है, थोड़ा सा उसको सरफेस को छील देते हैं जिससे वहां पे रूट डेवलप हो जाती है। बाद में उसको मेन प्लांट से कट करके अलग कर लेते हैं और फिर एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये पार्ट था लेयरिंग। इसके बाद हम देखेंगे टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि एक छोटा सा सेल लेते हैं, उस सेल को जिसको हम कैलस बोलते हैं, वो एक पार्ट होता है सेल का, उसको एसेप्टिक मीडियम में और कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स इंट्रोड्यूस करा के उसको जर्मिनेट करते हैं इन लैब कंडीशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने का, तो उन प्लांट में एडवांटेज है जिसमें वो सीड नहीं बना पाते या ऐसे सीड बनाते जो वाइबल नहीं होते या काम नहीं करते, तो जैसे बनाना, सीडलेस ग्रेप्स, रोज में ये काम आता है। ऐसे प्लांट जो है वो हाई प्रोडक्शन देते हैं कम समय में, शॉर्ट टाइम में हाई प्रोडक्शन देते हैं। एंड थर्ड जो होता है, उनके जो कैरेक्टर होते हैं वो प्रोपेगेटेड प्लांट के जो कैरेक्टर होते हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे एकदम बिल्कुल सेम होते हैं। सो ये था आपका एडवांटेजेस। नेक्स्ट, so thank you for watching this video and I hope you understand the topic fully.